अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे ओपन यू फॉर दिस बुक। अपनी बुक का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का हमारा टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में बेटे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और डिफरेंट टाइप के उसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट हमने मैग्नेटिज्म उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। अपनी बुक का पेज नंबर 127 आप लोग ओपन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। Electromagnetism is the branch of physics which that deal with the interaction between electric and magnetic field. It explains how electric charges produce electric field and how moving charges like an electric current create magnetic field. This connection help us to understand how modern devices work. Electromagnetism is an essential part of everyday life, powering electric circuits, communication systems, and generators. Even light is an electromagnetic wave, showing how important this force is in science and technology. Learning about electromagnetism gives us the knowledge to build useful machines and to understand the science behind today's technology. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें बेटे हम इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरेक्शन है इन दोनों के दरमियान में। जब इसको हम स्टडी करेंगे तो किस ब्रांच में करेंगे, हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच में। इस चैप्टर में बेटे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, किस तरह से जब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस करता है। इस चीज़ को हमने डिटेल से यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये हमारी एवरीडे लाइफ का भी एक असेंशियल पार्ट है बेटे। इलेक्ट्रिक सर्किट्स जब भी आप लोग हम अपने इर्द गिर्द आप नज़र दौड़ाओ ना, हर जगह हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जनरेटर्स हैं, इन सब के अंदर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है। इवन लाइट जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। शुरू करते हैं बेटे पढ़ना। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। टॉपिक है फर्स्ट 17.1 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। The magnetic effect of a steady current can be demonstrated through the experiment involving a current carrying conductor. Magnetic field B due to current in a straight wire. Hans Christian Ørsted stated that a steady electric current in a conductor generates a magnetic field B around it. This can be demonstrated by passing a current carrying wire through a vertical cardboard sheet and connecting it to a battery. When current flows, magnetic field is produced around it whose direction can be determined using right hand grip rule. Concentric circles are formed by magnetic field around the conductor. This can be observed by passing small compasses or sprinkle iron fillings on the cardboard. The compass needle align themselves along the direction of the magnetic field, pointing tangentially to the circular lines of force. If the direction of the current is reversed by switching the battery terminal, the compass needle and the iron filling also reverse their alignment, indicating that the magnetic field direction depends on the current flow. In the dot and cross convention, a dot represents current flowing out of the paper while a cross indicates into the paper. The magnetic field is the strongest near the conductor and weakened with distance. This concept is essential in electrical engineering, particularly with alternating current. छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने अभी रीड आउट किया। इसी से हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है बेटे, इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे हम लोग आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट टॉपिक इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट, ठीक है।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सपेरिमेंट। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज स्टेडी करंट। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है? ऐसा करंट बेटे जो कि चेंज नहीं होता विद टाइम, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है विद टाइम, और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेडी करंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोग राइट कर लो, अपनी बुक पे ही लिख लो, आपके पेपर में भी आ सकती है। करंट दैट डज नॉट चेंज विद टाइम इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इज कॉल्ड स्टेडी करंट। वो करंट जो कि टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ठीक है। करंट दैट डज नॉट चेंज विद टाइम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज स्टेडी करंट, ठीक है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिसका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इसने क्या स्टेट किया था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या? स्टडी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट का काम था, इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। इस चीज़ को हम किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट है? आपकी बुक में पूरी डायग्राम बनी हुई है। पहले मैं आपको इसको समझा लूँ, देन मैं आपको इसकी डायग्राम को भी एक्सप्लेन करूँगी। आपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है बेटे, आपने एक वर्टिकल कार्डबोर्ड शीट लेनी है। उस शीट को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। मैंने क्या कहा, आपने क्या लेना है? आपने बेटे एक वर्टिकल कार्डबोर्ड शीट लोगे और उसको कनेक्ट करोगे उसके बैटरी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम करंट कैरिंग वायर लेंगे और ये वायर हम मतलब एक कार्डबोर्ड शीट के अंदर जो है, वर्टिकल कार्डबोर्ड शीट के अंदर आप लोग ये वायर लोगे, ठीक है। जब यहाँ से मतलब आपने बैटरी के साथ इसको ज्वाइन कर दिया और आपने टर्न ऑन कर दिया, ठीक है। जब टर्न ऑन किया इसका मतलब है यहाँ से करंट जो है वो पास होना शुरू हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ से बेटे करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है? आप किस तरह से मतलब चेकआउट करोगे, किस तरह से उसको हम चेक कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है? हम क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है बाय राइट हैंड रूल। व्हाट इज़ राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल को इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर है उसमें हमने राइट हैंड रूल पढ़ना है डिटेल से, इसलिए सिर्फ अभी मैं ना आपको नाम ही बता रही हूँ कि हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको बेटे हमने, आप नेक्स्ट पेज पे हो ना, यहाँ पे हमारा राइट हैंड रूल दिया गया इसलिए मैं भी नहीं बता रही। राइट हैंड रूल से हम लोग इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या देखना है कि यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है। कंटिन्यूटी होती है उनमें। एक सर्कल्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के वो फॉर्म होंगे अराउंड द कंडक्टर के इर्द गिर्द जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है। इन सर्कल्स को हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें किस तरह से ये नज़र आएंगे? आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्मॉल कंपस लगा देनी है, स्मॉल कंपस प्लेस कर देनी है, या फिर आपने यहाँ पे स्पार्कलिंग आयरन की फिलिंग्स होती हैं बेटे, वो आपने इसके ऊपर गिरा देनी है। कंपस नीडल जो है वो अलाइन करेगी, उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगी और वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जो है वो नीडल अलाइन करना शुरू कर जाएगी, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि वो पॉइंट आउट करेगी सर्कल लाइंस ऑफ फोर्स को, मैग्नेटिक जो फील्ड है आपकी। इसी तरह से जो यहाँ पे आपने आयरन फिलिंग्स मतलब स्पार्कलिंग इधर फेंकी थी, वो आयरन फिलिंग्स भी अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स में बेटे आयरन फिलिंग्स भी जो है वो भी अपने आप को उसी तरह से बेटे सेट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी कि जिस तरह से करंट फ्लो हो रहा था हमने स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। किस तरह?
बाय स्विचिंग द बैटरी टर्मिनल्स, यानी कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है करंट के फ्लो पे। ठीक है, अभी मैं आपको आपकी बुक वाली जो है वो डायग्राम दिखाती हूँ। इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक आएगा आपको डॉट और एक आएगा आपको क्रॉस। डॉट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द पेपर, जबकि क्रॉस इंडिकेट करेगा इनटू द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के करीब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। जिस तरह इसका डिस्टेंस कंडक्टर से इंक्रीज होता जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्टिकुलरली विद अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अगर डिस्टेंस कम है तो स्ट्रॉन्ग होगी, अगर उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अच्छा बेटे, इस तरह से ये सारा हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट में और स्मॉल फॉर्म में, ईजीएस्ट फॉर्म में आपको इसको एक्सप्लेन करूँ। हम दो डिफरेंट तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कंपस नीडल के साथ और एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं आयरन फिलिंग के साथ। ठीक है, आपकी बुक में कंबाइनली बता दिया ना। मैं आप लोगों की आसानी के लिए बेटे इसको दो डिफरेंट तरीक़ों से बताती हूँ। पहले एक्सपेरिमेंट हम करेंगे जिसमें हमारे पास हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हैं बेटे। हमें बैटरी रिक्वायर्ड है, हमें स्ट्रेट वायर रिक्वायर्ड है और हमें मैग्नेटिक कंपस रिक्वायर्ड है। कंपस वाला हम करते हैं, आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लेसिंग स्मॉल कंपस और स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स। तो मैं आपको दोनों अलग अलग समझा देती हूँ, ठीक है, ताकि फर्दर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक कंपस को टेबल के ऊपर रखेंगे, लेट द नीडल सेटल नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब आपने एक स्ट्रेट वायर को होल्ड करना है डायरेक्टली अबव द कंपस नीडल पैरेलल टू इट। ठीक है, और आपने इस वायर को कनेक्ट कर देना है किसके साथ, अपनी बैटरी के साथ, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं, जब आपका करंट ऑन होगा आपकी नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, और जब आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे, मतलब करंट आपने ऑफ किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो दोबारा ऑन किया, तो आपकी डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने करंट की डायरेक्शन चेंज की थी। करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी चेंज होगी, क्योंकि आपकी कंपस नीडल जो है अब डिफरेंट डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह इसी एक्सपेरिमेंट को बेटे हम लोग दोबारा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट अभी किया कंपस वाला, इस एक्सपेरिमेंट से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, हमारा रिजल्ट क्या आया बेटे। इससे हमें क्या पता चला कि करंट कैरिंग वायर जो है इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होगी। ठीक है, कैसे, क्यों, कैसे क्रिएट होगी, क्योंकि नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन हुई ना, उस डिफ्लेक्शन से नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, और आपको डायरेक्शन बता रही है। इसकी वजह से हमें ये चीज़ पता चल गई कि इलेक्ट्रिसिटी ने मैग्नेटिज्म को क्रिएट किया। ठीक है, अब यही एक्सपेरिमेंट बेटे हम करेंगे आयरन फिलिंग के साथ। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे जिक्र भी किया गया है आयरन फिलिंग के साथ। वही ऑपरेटर्स हैं, कार्डबोर्ड है, आयरन फिलिंग है, बैटरी है और स्ट्रेट वर्टिकल वायर है, जिस तरह मैंने पहले आपको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में बताया था। उसी तरह हमने वायर को वर्टिकली पास करना है थ्रू द होल इन कार्डबोर्ड। ठीक है, आपके जो कार्डबोर्ड है उसके अंदर होल करके। ठीक है, और उसके बाद हमने आयरन को स्प्रिंकल, आयरन फिलिंग जो है उनको कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और करंट को टर्न ऑन कर देना है। जब आप करंट को टर्न ऑन करते हो, यानी कि बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, तो वहाँ पे फ्लो शुरू हो जाता है किसका, करंट का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या देखोगे, आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो आयरन फिलिंग्स हैं दे अरेंज देमसेल्फ इन कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि जो आपकी वायर है उसके इर्द गिर्द कंसेंट्रिक सर्कल्स में आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, समझ आ गई। हमने दो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लिए और हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। अपनी बुक की डायग्राम की तरफ आएँ, यहाँ पे अगर गौर करो। ठीक है, दिस इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको पहले बताया।
ये क्या चीज़ है हमारी पूरी की पूरी, ये हमने करंट कैरिंग कंडक्टर दिखाया, यहाँ पे हमारा क्या था, ये कार्डबोर्ड, और यहाँ पे हमने अपनी वायर को जो है वो प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या रखा, कंपास नीडल रखी। जब मैंने यहाँ पे बेटे बैटरी को ऑन किया यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, तो फ्लो ऑफ मतलब करंट हुआ। जब फ्लो ऑफ करंट हुआ तो यहाँ पे हमने नीडल रखी थी, नीडल की डिफ्लेक्शन शुरू होगी। जब नीडल की डिफ्लेक्शन शुरू हुई तो उससे हमें क्या पता चला कि जब इलेक्ट्रिक करंट बेटे प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। और वो किस तरह पता चला, ड्यू टू डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल। अब आप अपने स्विच को बेटे टर्न ऑफ कर दो। जब आप स्विच बंद कर दोगे इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो बंद हो गया, ठीक है। अब आप क्या करो, अपने बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दो, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दो, नेगेटिव की जगह यहाँ पे हमने पॉजिटिव कर दिया, और दोबारा से हमने अपना जो स्विच है उसको टर्न ऑन किया। जब आपने स्विच को टर्न ऑन किया तो यहाँ पे दोबारा से फ्लो ऑफ करंट शुरू हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट होता है, ये बैटरी है, वोल्टेज शो किया गया है, ये आई का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट। ये जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं दे आर फ्लो ऑफ करंट। ये क्या था, कार्डबोर्ड था, यहाँ पे वायर थी, इसके अंदर से गुजरी। अब यहाँ पे लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स में वो मूव करेंगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन अब इस वाले से चेंज होगी। इसकी डायरेक्शन, अब यहाँ पे डायरेक्शन हमें कैसे पता चली, यहाँ पे हमने कंपास नीडल रखी थी, नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन होती है, उसकी डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की थी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे क्या है बेटे, इट इज़ क्लॉकवाइज। इज डेट क्लियर। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। इसी एक्सपेरिमेंट को आप लोग कंपास नीडल के साथ भी कर सकते हो और आयरन फिलिंग के साथ भी कर सकते हो। आई होप कि अब आपको इस एक्सपेरिमेंट की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट पेज है हमारा और टॉपिक हमारा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग वायर। अभी जिसका जिक्र मैंने किया था राइट हैंड रूल के, मैं भी आपको जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग वायर। द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी around a current carrying straight wire can be found using the right hand grip rule as shown in figure 17.2. According to the right hand grip rule, if you hold the wire in your right hand with your thumb pointing the direction of the current, then your fingers curls around the wire in the direction of the magnetic field. This simple method helps us to quickly find the magnetic field direction around any straight current carrying wire. The magnetic field forms circular loops around the wire and its direction depends on the direction of the current. If the current changes direction, the direction of magnetic field also changes. ये एक और एक्सपेरिमेंट है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जगह जगह आप यहाँ पे इस चैप्टर में देखोगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कैसे हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो तो उसको, अगर कोई भी आपके पास वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है यानी कि करंट कैरिंग वायर है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है बाय राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल क्या होता है, आपकी बुक में इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगर आप लोग अपने राइट हैंड से, आप अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको अपनी वायर के इर्द गिर्द ग्रिप करो। सपोज दिस इज़ मैं आपको, ये आपका वायर है, इसको आपने अपनी फिंगर से ग्रिप करना है और आपने थंब को पॉइंट करना है स्ट्रेट, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे ये देखो बनी हुई है डायग्राम। इस डायग्राम पे गौर करो पहले, इस तरह से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इस डायग्राम को गौर से देखो। अब स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। आपकी बुक में इसकी स्टेटमेंट दी गई है। इस डायग्राम को देखो। अगर आप लोग वायर को अपने राइट हैंड से होल्ड करो, ये आपकी वायर है, वायर को आपने राइट हैंड से होल्ड करना है सच डैट जो आपका थंब है वो पॉइंट हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड होगी। आपकी फिंगर जो हैं वो आपकी वायर के इर्द गिर्द कर्ल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो आपकी फिंगर्स हैं ये आपको क्या देंगी, ये आपको डायरेक्शन बताएंगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। जो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन होगी ना,
जब आप थंब को अपवर्ड पॉइंट कर लोगे, फिंगर्स को इसके इर्द गिर्द करोगे, तो जो फिंगर के कर्ल की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसकी होगी? डैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इफ़ यू होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड विद योर थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन योर फिंगर कर्ल अराउंड द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? सिंपल यहाँ पे आपको डायग्राम के साथ भी दिखाया है। सपोज दिस इज़ अ वायर, इस वायर को आपने राइट हैंड से पकड़ना है, अपने थंब को आपने अपवर्ड रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपकी फिंगर जिस साइड पे कर्ल होंगी ना, वही डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अब ये फिंगर इस तरफ कर्ल है, ठीक है, इसका मतलब है आपकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो ये वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो बाय राइट हैंड ग्रिप रूल, और इसकी स्टेटमेंट भी आपने इसी तरह से याद करनी है। और ये सिंपलेस्ट मेथड है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वायर के इर्द गिर्द सर्कुलर लूप बनाती है, और इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो आप वहाँ पे बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। The magnetic field forms circular loops around the wire and its direction depend on the direction of the current। और अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो क्या हो जाएगी? उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं बेटे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। Magnetic field due to current in a solenoid. A solenoid is a coil of wire wounded in a shape of cylinder that generates a magnetic field when current flows through it. The combined effect of all loops of wire of solenoid make the field strong and uniform like a bar magnet with north and south poles. A solenoid acts as a magnet and can attract or repel a bar magnet. This temporary magnet provided by electricity is called electromagnet. The right hand rule helps to find out the direction of the magnetic field produced by the solenoid. According to this rule, if you grip the solenoid with your right hand such that curl finger point the direction of conventional current, then the thumb will point toward north pole of the solenoid. Electromagnets are useful in motors, relays, and magnetic locks because their magnetic strength can be controlled by adjusting the current. छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने अभी रीड आउट किया, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। अच्छा, यहाँ पे हमने पूरा एक एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बेटे एक लॉन्ग कॉयल होती है। क्या होती है? लॉन्ग कॉयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर वायर की एक लॉन्ग कॉयल होती है जो कि वाउंड होती है इन द शेप ऑफ हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स इसकी फॉर्म में जो है ये इसकी शेप होती है। ठीक है, या आप सिंपल बहुत इजी टर्मिनोलॉजी में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये कह सकते हो स्प्रिंग शेप वायर, स्प्रिंग की शेप की वायर है। ठीक है, विद लॉट्स ऑफ टर्न, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खम हैं, बहुत ज़्यादा बल होते हैं, जैसे ये बहुत ज़्यादा बल हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सोलेनाइड एक कॉयल है किसकी? वायर की, जो कि सिलेंडर की शेप में वाउंडेड होती है, और ये क्या चीज़ जनरेट करेगी? इट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड जब उसके अंदर से करंट फ्लो होगा। ठीक है, आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, मैंने भी आपको इसकी डेफिनेशन बता दी। कंबाइन इफेक्ट ऑफ लूप्स, ये जो वायर के टर्न्स होते हैं ना, वायर के जो बल होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? लूप्स ऑफ वायर। ये जो लूप्स ऑफ वायर होते हैं सोलेनाइड के, ये क्या चीज़ क्रिएट करते हैं? ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म फील्ड जो है, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटे प्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। जिस तरह एक बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बिल्कुल इसी तरह से इसके भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे। सोलेनाइड जो है वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है, और ये अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। जिस तरह बार मैग्नेट जो है उसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है ना, बिल्कुल जब इसके अंदर से फ्लो ऑफ करंट होगा इसमें, तो ये भी एक्ट करेगी एज ए बार मैग्नेट, अट्रैक्शन भी शो करेगी, रिपल्शन भी शो करेगी। ठीक है, लेकिन ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। एक तो मैग्नेट है ना, वो तो परमानेंट मैग्नेट है, उसने हर टाइम मैग्नेट रहना है।
लेकिन सोलेनाइड जो है इट एक्ट एज ए टेम्परेरी मैग्नेट, यानी कि जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो ये मैग्नेट के तौर पर एक्ट करेगी। जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा तब ये मैग्नेट के तौर पर एक्ट नहीं करेगी, यानी कि ये टेम्परेरी मैग्नेट है, इट इज़ पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह के मैग्नेट को जो कि टेम्परेरी एक्ट करता है मैग्नेट के तौर पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट का तो पता है, साथ हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा तो ये कैसे एक्ट करेगा, एज ए मैग्नेट। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, दिस टेम्परेरी मैग्नेट पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इसी तरह से यहाँ पे भी जब हम बेटे मैग्नेटिक फील्ड हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे बाय राइट हैंड रूल ही से हमने फाइंड करनी है। वही स्टेटमेंट है यहाँ पे भी कि इफ़ यू ग्रिप द सोलेनाइड, अगर आप सोलेनाइड को अपने राइट हैंड में ग्रिप करो सच डैट आपकी कर्ल फिंगर जो है वो पॉइंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो आपका थंब जो है वो पॉइंट करेगा टूवर्ड द, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले आपकी फिंगर्स लास्ट में जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना, इसमें आपकी फिंगर जो थी ये आपको बता रही थी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपका क्या बता रहा है, आपका थंब, योर थंब विल पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ पोर्ट ऑफ द सोलेनाइड। अगर आप आगे आओ ना आपकी बुक में, यहाँ पे बेटे ये बना भी हुआ है, ये देखें, इस डायग्राम को देखो, ये राइट हैंड रूल है फॉर सोलेनाइड। सोलेनाइड के लिए जो राइट हैंड रूल है वो थोड़ा सारा चेंज है। यहाँ पे आपने अपने सोलेनाइड को अपनी पूरी फिंगर्स उसके इर्द गिर्द कर्ल करनी है। आपका थंब जो है वो पॉइंट आउट करेगा क्या चीज़, आपकी डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और ये पॉइंट आउट करेगा टूवर्ड, जिस साइड पे आपका थंब जाएगा ना वो डायरेक्शन कौन सी होगी, वो नॉर्थ साइड होगी, ठीक है। और उसके ऑपोजिट क्या होगी, साउथ होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हम बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, अभी मैंने बता दिया ना कि जो टेम्परेरी मैग्नेट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इनको हम लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी मैग्नेटिक लॉक्स है, क्योंकि इनके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है उसको हम लोग करंट से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये भी छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, छोटा ही सा टॉपिक था। चैप्टर हमारा ये वाला जो है ना ईजी है। हमने क्या पढ़ लिया इस एक्सपेरिमेंट में, हमने पढ़ लिया, हमने एक्सपेरिमेंट किया ना, एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, हमें बैटरी रिक्वायर्ड थी, ठीक है, और हमें की रिक्वायर्ड थी लॉन्ग कॉयल ऑफ वायर, ठीक है। ये बड़ी सारी हमने कॉयल ली थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, सोलेनाइड का नाम दिया था। आयरन फिलिंग्स ले लें या हम लोग जो है कंपस नीडल भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, जो चीज़ आपको वहाँ पे आपके पास मौजूद है आप वो ले सकते हो, ठीक है। कंपस भी ले सकते हो, आयरन फिलिंग्स भी ले सकते हो। हमने क्या करना है कि इसी तरह से सोलेनाइड के साथ हमने क्या चीज़ बेटे ज्वाइन करनी है, बैटरी जो है ज्वाइन करनी है और करंट को ऑन करना है। जब यहाँ से फ्लो ऑफ करंट होगा, जब करंट फ्लो होगा तो सोलेनाइड जो है इट बिहेव एग्जैक्टली लाइक अ बार मैग्नेट। वो बिल्कुल किस तरह से बिहेव करेगी, बार मैग्नेट की तरह ये सोलेनाइड बिहेव करेगी। एक एंड नॉर्थ पोल बनेगा और एक एंड जो है वो बिहेव करेगा एज ए साउथ पोल। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिहेव कर रहा है, जब आप यहाँ पे आयरन फिल्म फेंकोगे तो आपके आयरन जो है वो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आयरन किसके साथ अट्रैक्ट होता है, आयरन हमेशा मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है। जब आयरन यहाँ पे अट्रैक्ट होगा इसका मतलब क्या होगा कि आपका सोलेनाइड बिहेव कर रहा है किस तरह से, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, फील्ड लाइंस ये जो लाइंस प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, और ये भी नीचे भी लाइंस प्रोड्यूस हुई हैं, दे आर नोन एज फील्ड लाइंस। ये पैरेलल होंगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी, देखो ना सबका स्पेस एक जैसे है ना, इक्वली स्पेस्ड होंगी। और जैसे जैसे बार मैग्नेट के करीब होते हैं तो ये लाइंस जो हैं ये क्लोज होती हैं, जैसे जैसे मैग्नेट से दूर होते जाएंगे ये लाइंस क्या होती जाएंगी, खुली होती जाएंगी, ठीक है। तो हमारा इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलती है, क्या हमारी ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट हमारा क्या आता है कि करंट कैरिंग सोलेनाइड जो है इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू बार मैग्नेट। ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है सोलेनाइड जब इसके अंदर से करंट फ्लो हो, और ये मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर होती है किसके जैसी बेटे, बार मैग्नेट जैसी। और इस तरह की ये मैग्नेट को जो टेम्परेरी मैग्नेट है लेकिन जब उसके अंदर से करंट हम पास करते हैं तो वो मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है। इस तरह के मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं।
आपकी बुक में यहाँ पे देखो डायग्राम भी बनी हुई है, मैंने भी सारा ये किया है। सोलेनॉइड है, इसको हमने किसके साथ ज्वाइन किया, बैटरी के साथ, ठीक है। जब फ्लो ऑफ करंट हुआ तो ये कैसे एक्ट किया, एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि आयरन फिलिंग्स जो थी वो इसके साथ अट्रैक्ट होगी। क्लियर हो गया। और ये सारी आपको जो है ये लाइंस बताई हुई हैं, ठीक है। और सारा ये आपने अच्छी तरह से बेटे इसको लर्न करना है। दीज आर फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं इनको, ये जो आपको शो की गई हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया बेटे, यहाँ पे 2-3 हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की है, वो भी मैंने आपको बता दिया, उसको आपने अच्छी तरह से याद करनी है, ठीक है। ये आपका जो राइट हैंड रूल था वो यहाँ पे बताया कि सोलेनॉइड के केस में आपने डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करनी है, ठीक। उसके बाद एंड पे इसके यूजेस थे, इसके बहुत सारे यूजेस हैं आपकी बुक में। इसका एक मेन यूज़ बताया, डेट इज़ मैग्नेटिक लॉक, मोटर्स और रिलेज। इसके अलावा कुछ यूजेस मैं भी आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो ये है डोर बेल्स में हम इसको यूज़ करते हैं, रिले में हम इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वॉल्स में, यानी कि किसी भी चीज़ को ओपन या क्लोज करने के लिए विदाउट टचिंग, यानी कि टच किए बगैर किसी चीज़ को ओपन या क्लोज करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद MRI मशीन, ठीक है, जो बेटे मेडिकल की फील्ड में एक मशीन होती है जिसको हम MRI मशीन कहते हैं। MRI मशीन में भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये 3 टॉपिक पढ़े। इन तीनों टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।